الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال تعالى في موضع آخر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام اور پردہ میں بیٹھی میری ماں اور بہنیں اور گھروں میں بیٹھے ہوئے میرے گارجن حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ سلام کا جواب دے دیں۔ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے، ضروری ہوتا ہے۔ اور میں جب ایک بار کہہ دوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ لوگوں کو اتنا ہی جواب دینا چاہیے، اس لیے کہ 4 جز ہے سلام کے اندر۔ اگر چاروں میں کہہ دیا، جیسے میں نے ابھی کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لوگ وہ مغفرتہ بھی فرماتے ہیں، تو اس میں 40 نیکیاں ملتی ہے۔ آپ لوگ بھی جواب دیں گے تو آپ لوگوں کو بھی 40 نیکیاں ملیں گی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت ذکر خیر کر رہے تھے ہمارے شاعر صاحب، اور یقیناً ہم لوگوں کو خوش ہونا چاہیے اور ہم لوگ خوش بھی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر ہمارے نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی ہے، ان کی آمد ہوئی ہے۔ ابھی ہمارے شاعر محترم فرما رہے تھے، چاندنی چاند سے بھی کہا کہ نبی آ گئے، اور ہمارے حضرت مولانا احمد رضا صاحب نے بھی کہا کہ نبی آ گئے۔ ہم سب مل کے کہیے کہ نبی آ گئے۔ ہم لوگوں کا ایمان ہے کہ ہمارے نبی اسی مہینے کے اندر تشریف لائے ہیں۔ ہم لوگوں کا یہ بھی ایمان ہے کہ ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے کے اندر وفات پائے ہیں، ان کا انتقال ہوا ہے، ان کی رحلت ہوئی ہے، وہ اللہ کے پیارے ہو گئے ہیں، اس دنیا سے وہ پردہ فرما گئے ہیں۔ ہمارا نبی، آپ کا نبی، ہم سب کا نبی، بریلیوں کا نبی، دیوبندیوں کا نبی، سب کا نبی، یہ نبی تمام فرشتوں کا امام ہے، تمام نبیوں کا سردار ہے۔ اسی نبی کے اوپر اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، اس لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود و سلام پیش فرمائے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ محترم سامعین کرام، ہمارے نبی تشریف لائے، جس وقت اپنے ماں کے پیٹ میں موجود تھے، جس طریقے سے عام بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس زمانے کے اندر ہماری ماں بہنوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، ان کو کھانا اچھا نہیں لگتا ہے، پینا اچھا نہیں لگتا ہے، سونا اچھا نہیں لگتا ہے، جاگنا اچھا نہیں لگتا ہے، چلنا پھرنا اچھا نہیں لگتا ہے، ہر وقت تکلیف میں رہتی ہے، پریشانی میں مبتلا رہتی ہے۔ مگر میرے آقا، آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں کے پیٹ میں جب تھا، ان کی ماں کا بیان ہے کہ ان کو اس طریقے سے کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچی۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کی برکت ہے۔ میرے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں کے پیٹ میں ہے، اور ان کی اماں جدھر سے گزرتی ہے، ان کے بطن سے، ان کی پیٹ سے، اس کے جسم سے، ان کے قدم سے، ان کے سراپا جسم سے خوشبو پھوٹ رہی ہے۔ یہ آپ کے اور ہمارے نبی کی برکت ہے۔ میرے دوست اور بزرگ، اسی نبی کے ہم امتی ہیں، ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، ہم ان کے دیوانے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، اس نبی سے پیار کرتے ہیں، اس نبی کے ہر ایک سنت پہ ہم سب عمل کرنے والے بن جائیں تو اور بات بن جائے گی انشاءاللہ۔ کریں گے انشاءاللہ۔ میرے دوست اور بزرگوں، میرے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے، اس وقت جس روم کے اندر پیدا ہوئے، وہ روم بڑا اندھیرا تھا،
मगर मेरे नबी की आमद की बरकत से वो रूम बिल्कुल उजाला हो गया। सिर्फ वो रोशनी उस रूम के अंदर नहीं हुआ, बल्कि मुल्क शाम और बसरा तक के महल्लात नजर आ गए मेरे नबी की रोशनी से। मेरे दोस्तों, हम लोग कितना खुश नसीब है, उस नबी के हम आखिरी उम्मती हैं। उस नबी की तालीमात क्या है, हमें उस पर जानना है, उलमा से सीखना है, किताबों को पढ़ना है, हदीसों को मुताला करना है, कुरान करीम की तफसीर पढ़ना है, तब जाके हमें पता चलेगा वो नबी की आमद जो आई है, वो नबी हम लोगों के लिए जो बरकत है कब है, जब उस नबी के सुन्नत पर हम सब अमल करने वाले बन जाए। हम नबी से मोहब्बत करते हैं, नबी के बचपने को पढ़ना चाहिए, नबी के जवानी को पढ़ना चाहिए, नबी के बुढ़ापे को पढ़ना चाहिए, नबी का मामला कैसे था अपनों के साथ गैरों के साथ उसको पढ़ना चाहिए। हमारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त पैदा हुए थे, आप तमाम हजरात जानते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद उनको दूध की जरूरत पड़ती है। मेरे नबी चूंकि इंसान थे, मेरे नबी को भी दूध की जरूरत थी। उस जमाने की आदत थी कि मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर और शहर के अंदर जब बच्चा पैदा होता था, गांव और देहात से औरतें आती थी और शहर के बच्चों को लेकर जाती थी, दूध पिलाती थी। इस दूध पिलाने की उनको मजदूरी मिलती थी, उजरत मिलती थी, तनख्वाह मिलती थी। जिस जमाने में, जिस वक्त हमारे आका और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा हुए, मेरे नबी के वालिद मोहतरम, मेरे नबी के अब्बा जान, मेरे नबी के पिताजी, मेरे नबी के फादर उस वक्त हयात से नहीं थे। मेरे नबी जब अपने माँ के पेट में था, अभी पैदा भी नहीं हुआ, उनके अब्बा हुजूर का इंतकाल हो गया। तो जब इस तरह का बच्चा पैदा होता है जिस वक्त उनके बाप मौजूद ना हो, तो उस बच्चे को हम और आप क्या कहते, यतीम कहते, यतीम। बाल्फाज दिगर हम लोग गरीब समझते हैं उस बच्चे को। मेरे आका के तवल्लुद हुआ, मेरे आका पैदा हुए और देहात से जो औरतें आती थी शहर के अंदर मामूल के मुताबिक आई और आने के बाद मालदारों के घरों में गई और देखा कि ये मालदार है, इस बच्चे का बाप है, अगर हम इस बच्चे को लेंगे तो उजरत में, मजदूरी में, तनख्वाह के तौर पर ज्यादा रुपया मिलेगा। इसलिए दूसरे बच्चों को दाई लोग आए और बच्चों को लेकर चले गए। लेकिन आपके नबी, हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी यतीम पैदा हुए थे, उसको लेने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ था। इसलिए मालदारों को बच्चे को ले लेकर वो लोग अपने गांव और घर चले गए। मगर कुर्बान जाइए, एक दाई हलीमा है, उसका नाम सादिया बोलते हैं। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, जब वो आ रही थी गांव देहात से, वो जो ऊँटनी लेकर आते, उनकी ऊँटनी बड़ी कमजोर थी, दुबला थी, लागर थी, चल नहीं सकती थी, धीरे धीरे चलती थी। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, वो औरत सादिया हलीमा पीछे रह गई और दूसरी औरतें तेजी से आई और मालदार के बच्चों को ले लेकर चली गई। वो जब आई, सारे घरों में छान मारी, देखा कि मालदार के घरों में कोई बच्चा नहीं है, सबको लेकर चले गए हमारे शहरी लोग। तो ये गरीब घर है जो एक बच्चा पैदा हुआ है जिसका बाप भी नहीं है, इसलिए उस बच्चे को किसी ने नहीं ले गया। अब लाचार नाचार क्या करे, जब बच्चा नहीं मिला उसी बच्चा को लेती है और मांगती है, इस बच्चे को ले दो मोहम्मद को, हम लेके जाएंगे। उनकी अम्मा बोलती है इस बच्चे का बाप नहीं है, आप ये गुमान मत कीजिएगा ज्यादा पैसा मिलेगा। वो कहती है हमें पैसा मिले ना मिले, क्योंकि मुझे बच्चा नहीं मिला है, मुझे लेके जाना है, इसलिए मैं इसी बच्चे को लेके जाऊंगी। मेरे दोस्त कुर्बान जाइए, हमारे बच्चे शोर मचा रहे, उनसे भी दरखास्त कीजिए, हमारी माँ बहनों से भी दरखास्त करूंगा, सारे काम काज को, अपनी गुफ्तगू को, अपनी मजलिस को आगे पीछे कर ले। नबी की बात हो रही है, नबी का बयान हो रहा है, नबी का जिक्र हो रहा है, मिलाद कर रहे हैं, इसलिए आप सब के ऊपर जरूरी है कि हम खामोशी के साथ अपने नबी का जिक्र को सुने। यह इबादत है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, मेरे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिया हलीमा लेकर के जाती है। जिस वक्त वो सवार करती है अपने ऊँटनी के ऊपर, मेरे नबी की बरकत से वो ऊँटनी तेज तर्रार हो जाती है और वो ऊँटनी इतना तेज चलती है कि उन सहेलियों से आगे बढ़ जाती है। जब वो आगे बढ़ जाती है, उनकी सहेलियां पूछती है, ऐ सादिया हलीमा, जरा ये बताओ क्या तुमने सवारी को बदल लिया है?
यानी जो ऊँटनी लेकर आई थी उसको बदल दिया है। तो सादिया हलीमा कहती है मैं सवारी को नहीं बदली बल्कि मैंने सवार को बदला है, मैं नबी जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवार किया है। ये मेरे नबी की बरकत है कि जो लागर उठनी थी, जो कमजोर थी, वह भी फरबा हो गई, वह भी तेज तलवार हो गई और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के 80 और 100 के स्पिरिट में उन लोगों से आगे हो गई। ये आपके और हमारे नबी की बरकत है मेरे दोस्तों। उसी नबी के हम उम्मती हैं। वो नबी चले जाते हैं और जिस घर में जाते हैं और जिस जमाने में पैदा होते हैं वह जमाना कहत साली का जमाना है। कहत साली का जमाना उस जमाने को बोलता है कि जब बारिश नहीं होती है, घास जमीन से नहीं उगता है, फल दरख्तों में नहीं आता है, लोग परेशान हो जाते हैं, जिस तरीके से हम लोग अभी लॉकडाउन में परेशान हो गए। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, मेरे नबी की बरकत है कि जिस घर में गए उस नबी की बरकत से उस घर की बकरियां दूध दे नहीं रही थी, मेरी नबी के बरकत से दूध देने लगी। उन बकरियों के थनों में दूध नहीं था, मेरे नबी के बरकत से उन बकरियों के थनों में दूध आ गया। तमाम वहां के लोग परेशान हो गए। पता करो कि सादिया हलीमा अपनी बकरियां कहां चराती है, लिहाजा मालूम करो और अपनी बकरियों को वहीं लेके जाओ ताकि हमारी बकरियां भी घास खाए, मोटी हो जाए और दूध दे। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, वो लोग भी अपने बकरियों को इनकी बकरियों के साथ उसी जगह लेके जाते थे जिस जगह सादिया हलीमा की बकरियां चरा करती थी। चरने के बावजूद उनकी बकरियों के थनों में दूध नहीं और इनके बकरियों के थनों में दूध क्यों? इसलिए कि इनका मुकद्दर का सितारा जो चमका था वो घास की वजह से नहीं, वो आपके और हमारे नबी की बरकत की वजह से। उनके घरों में तो नबी कहाँ मौजूद था उस वक्त। मेरे दोस्तों, उसी नबी के हम दीवाने हैं, उसी नबी के हम उम्मती हैं। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अपने नबी का नाम जब भी लिया जाए, जब भी आप सुने, उस वक्त आप दरूद शरीफ पढ़ें। बोलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद का नाम नामी इसमें गिरामी आए और कोई दरूद ना भेजे, उससे बड़ा बखील कोई नहीं होगा। इसलिए अगर हम नबी पर दरूद नहीं पढ़ेंगे तो जन्नत का रास्ता भुला दिया जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। जब भी नबी का नाम आए तो दिल के साथ, मोहब्बत के साथ, बुलंद आवाज से हमें दरूद भेजना चाहिए। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। एक मरतबा बुलंद आवाज से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हमारे नबी जब वहां पहुंच जाते हैं, 2 साल 2.5 साल उनके यहाँ रहते हैं। एक मरतबा ऐसा हो जाता है कि जिस घर में होते हैं उस माँ के जो और बच्चे होते हैं वो लोग बकरी चराने के लिए जाते हैं। मेरे नबी भी उन लोगों के साथ बकरी चराने के लिए जाते हैं। अल्लाह के तरफ से फरिश्ता आता है और मेरे नबी के सीने को चाक करते हैं, मेरे नबी के सीने को फाड़ते हैं। फाड़ने के बाद उनके अंदर की चीजों को निकालते हैं और आबे जमजम से उनको धो करके फिर उसके अंदर रख करके सील देते हैं, सफाई कर देते हैं। मेरे दोस्तों, जिस वक्त ये फरिश्ता आकर इस तरह किया है और उनके साथ जो बच्चे बकरी चराते थे वो डर गए और कांप गए। उन्हें खबर नहीं कि यह कोई फरिश्ता था। वो लोग वापस दौड़ के जाते हैं रोते हुए और जाके अपने माँ से जिक्र करते हैं, अम्मा मेरे भैया मोहम्मद को किसी ने सीना को चीरा और उसके कलीजा गुर्दा को निकाल करके धोया और उसके अंदर रख दिया। हम लोग डरते हुए आपके पास आए हैं। उनकी माँ, उनके बस्ती वाले सारे दौड़ के आते हैं और आके देखते हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे पहले थे वैसे बैठे हुए हैं। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, नबी का जिक्र हो रहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। अपने नबी के बयान को, नबी के बात को सुनना, नबी के बात को सुनाना, यह इबादत है, नेकी है। अल्लाह राजी होगा हम लोगों से। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, उसी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा रहे। किस्सा मुख्तसर, जूझ उमर बढ़ती गई। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, बच्चों की आदत होती है बच्चों में घुसकर खेलने की, बच्चों की आदत होती है मिट्टी से खेलने की। मेरे नबी सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ कभी बच्चों के वाला खेल नहीं खेलते थे और कभी वहां के लोग मेला में जाते थे। मेरे नबी को भी अगर कभी मजबूर करते थे, अगर जाए भी और गए भी मेला के अंदर तो वहां जाने के बाद उनको नींद आ जाती थी और मेरे नबी, आपके नबी सो जाते थे और उन खुराफात में शरीक नहीं होते थे। इसी तरीके से धीरे धीरे मेरे और आपके नबी की परवरिश हो जाती है। जब उनकी उम्र 40 साल हो जाती है, 40 साल के बाद उनको नबूवत मिलती है, अल्लाह के तरफ से परवाना मिलता है, उनको कुरान मिलता है और उस कुरान के बरकत से पूरे दुनिया को मुनव्वर करते हैं, रोशन करते हैं।
जिस कुरान करीम को हम लोग पढ़कर बीमारों पर दम करके शिफा हासिल करते हैं, जिस कुरान करीम को हम पढ़ करके घर का इफ्तिताह करते हैं, जिस कुरान करीम को पढ़ करके अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अपनी दुआओं को कबूल कराते हैं, जिस कुरान करीम को हमारे बच्चे पढ़कर हाफिज कुरान बन जाता है, जिस कुरान करीम को पढ़कर हम लोग ये उम्मीद रखते हैं कि अगर हम अपने मुर्दों के लिए बख्श देंगे उनकी मगफिरत हो जाती है। इस कुरान करीम को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया है। यह कुरान जो आप और हम पढ़ते हैं, आप और हम पढ़वाते हैं, यह कुरान वो कुरान है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जिसके अंदर का ये पता है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। यह मेरा कलाम नहीं, आपका कलाम नहीं है, किशनगंज वालों का कलाम नहीं है, बिहार वालों का कलाम नहीं है, यह तो कलाम उस शख्स का कलाम है जिसको आप और हम रब्बे जिल जलाल कहते हैं। यह तो अल्लाह का कलाम है, कलामुल्लाह है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह ने जिस कुरान को नाजिल किया अपने नबी पर, उसी कुरान में यह पता बताया हम लोगों को कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम इला आखिरिही। इसके अंदर बयान किया गया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मौत को पैदा किया, हयात को पैदा किया, यानी हम जो मर जाते हैं इसका मालिक भी अल्लाह है, हम जो जिंदा रहते हैं इसका मालिक भी अल्लाह है, यानी मौत और हयात को अल्लाह ही ने पैदा किया, इसका मालिक खुदा है। मेरे दोस्तों, अल्लाह हमें क्यों पैदा किया है? कुरान करीम में मौजूद है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान और जिन्नात को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। हम इंसान हैं, अल्लाह ने हमको पैदा किया है अपनी इबादत के लिए। मेरे दोस्तों, हम इबादत कैसे करें? हमें कैसे पता चलेगा कौन सा काम हमारी इबादत है? अभी हमारे नाथ खान साहब फरमा रहे थे, नात पढ़ना भी इबादत है, नात सुनना भी इबादत है। मेरे दोस्त, यह जिक्र करना भी इबादत है। मिलादुन नबी यानी नबी के पैदाइश को जिक्र करना यह भी इबादत है, नबी का जिक्र करना यह भी इबादत है, नबी की सीरत को बयान करना यह भी इबादत है, कुरान की बातों को सुनाना यह भी इबादत है, मौत का जिक्र करना यह भी इबादत है, हयात का जिक्र करना यह भी इबादत है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, मैंने कहा अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। इसका मतलब यह है अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी को पैदा किया, अल्लाह तबारक व तआला ने मौत को पैदा किया, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को इसलिए पैदा किया कि मैं देखूं मेरा कौन बंदा अच्छा अमल करके मेरे पास आता है। मेरे दोस्तों, हम लोग पैदा हुए हैं मरने के लिए, ऐसा नहीं है कि हम पैदा हो गए हैं और मरेंगे नहीं। इसलिए कि दुनिया जब से बनी है लोग पैदा भी हो रहे हैं और मर भी रहे हैं। सबसे पहला आदमी जिसको आप और हम कहते हैं, पहला नबी जिसका नाम है आदम अलैहिस्सलाम, इस दुनिया के अंदर पैदा हुए। अल्लाह तबारक व तआला उनके जी लगाने के लिए, उनके दिल लगाने के लिए जब वो तने तनहा थे तो अल्लाह तबारक व तआला उनके बाएं पसली से एक औरत को तैयार किया, उसका नाम हव्वा है, जिसको आप और हम हव्वा अलैहिस्सलाम कहते हैं। उस औरत को पैदा करने के बाद एक मर्द के लिए दिल बहलाने के लिए चीज बनाया, उनकी बीवी बना दिया, उन दोनों की शादी करा दिया। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, वो नौजवान इसका पता नहीं बता सकता है जो शादी के बाद क्या मजा है, शादी के बाद की जिंदगी कितनी खुशगवार है, शादी के बाद कितनी अच्छी जिंदगी गुजरती है। इसका मजा तो वही बता पाएगा जिसकी शादी हो गई है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हमारे नौजवान जब तक शादी नहीं करता है, दिन भर कमाता है, थक जाता है, रात को आके सो जाता है, उसका कोई पुरसानी हाल नहीं है, उसके सर में तेल लगाने वाला कोई नहीं मिलेगा। सुबह कहाँ थे, कैसे वक्त गुजारे और कहाँ से थक हार के आए, कोई पुरसानी हाल नहीं। ज्यादा दर्द होगा तो दवाई का सहारा लेके खा के सोता है। मगर एक शादीशुदा से पूछिए, जब वो कहीं से काम करके आता है, थक के आता है, उसके पूछने वाले उसकी बीवी होती है, और आते ही उसको ठंडा पानी की जरूरत है तो ठंडा पानी पेश करती है, गर्म पानी की जरूरत होती है तो गर्म पानी पेश करती है, पंखा है तो पंखा झेलती है, अगर लाइट है तो एसी चला देती है, और खाने के बारे पूछती है कि मेरे शौहरे मोहतरम, आप सुबह चाय पी के घर से निकले थे, न जाने आपने नाश्ता किया है कि नहीं, खाना खाए कि नहीं, आप कैसे वक्त गुजारे, आइए जरा नाश्ता ले लीजिए, आप खाना ले लीजिए। मेरे दोस्तों, जो शादीशुदा मर्द है उसे पता है कि उस वक्त कितना गम हल्का हो जाता है, कितनी तकलीफ दूर हो जाती है, दिन भर की थकावट दूर हो जाती है। और जिसकी शादी हुई है, अभी तक उनकी औलाद नहीं हुई है,
उनको नहीं पता कि औलाद की मजा क्या है। आप उस शख्स से पूछे जिसके 2-4 औलाद हो गए हों, जब वो काम से कहीं से आते हैं, थक थका के आते हैं, जब उनकी औलाद आती है और बाप कहती है और कभी चिमड़ जाते हैं, कभी गोद में चढ़ जाते हैं। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद होंगे जो शादीशुदा होंगे। अगर वो अच्छा कपड़ा भी पहन के आता है, प्रेस किया हुआ कपड़ा पहन के आता है, मगर एक बच्चा है या एक बच्ची है और कपड़ा गंदा हो गया और कीचड़ से आई है, खेल के आई है, वो बच्चा जब गोद में आता है, शायद कोई ऐसा बाप नहीं होगा कि उस बच्चे को उस वक्त नहीं उठाता इसलिए कि मेरे कपड़ा गंदा हो जाए, बल्कि फौरन उस बच्चे को गोद में उठाते हैं और उन्हें प्यार करते हैं और उनको बोसा देते हैं। उस बच्चे की बरकत से दिन भर की थकावट दूर हो जाती है। बच्चे का मजा, बच्चे का फायदा तो साहिब औलाद ही बता सकता है, वो नहीं बता सकता है जिसकी शादी हुई अब तक औलाद नहीं हुई है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे नबी जवान हुए, मेरी नबी की शादी हुई, मेरी नबी का औलाद हुई, और औलाद में सिर्फ लड़का नहीं, मेरे नबी के औलाद में लड़का भी है और लड़कियां भी है। और हमारे वो नौजवान जिसके घरों में सिर्फ लड़कियां हैं, या वो नौजवान जिसके घरों के अंदर सिर्फ लड़के हैं, जिसके घर लड़के हैं उसे पता नहीं जिस घर में लड़की है उस घर के अंदर कितनी खुशगवारी है, उस घर के अंदर कितनी साफ सफाई है, उस घर के अंदर कितनी बरकत है, उस शख्स को पता नहीं। पूछना है पता तो उससे पूछिए जिसके घर 2-4 बच्चियां भी पैदा हुई है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उस शख्स को पता नहीं कि बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है। जिसके घर में सिर्फ बच्चियां है, बच्चा नहीं है, उनसे पूछिए कि जब बूढ़ा हो जाता है, माँ बूढ़ी हो जाती है, बीमार हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, और इधर नौजवान लड़का होता है, दीनदार होता है, फर्मा बरदार होता है, बाप की खिदमत करने वाला होता है। उस शख्स से पूछिए कि जिसके घर में जवान बेटा और बाप की खिदमत गुजार होता है और जिसके घर नहीं होता है, उनके दिल में मुवाजना कीजिए, आसमान और जमीन का फर्क होगा। खुश नसीब वो शख्स है जिसकी शादी हुई, उनके घर में लड़का भी पैदा हुआ, उनके घर में लड़की भी पैदा हुई। और वो लोग मायूस ना हो जाए जो लोग शादी कर लिए हैं, ना लड़का हुआ है ना लड़की हुई है। इसलिए कि लड़का देने वाली जात अल्लाह है, लड़की देने वाली जात अल्लाह है। किसी को दोनों देते हैं, उसका मालिक अल्लाह है। कुरान में लिखा है अल्लाह जिसको चाहता है लड़का और लड़की दोनों से महरूम फरमा देता है। मेरे दोस्तों, जिनके घर में बच्चियां हैं, जिनके घर में बच्चे हैं, बड़े खुशनसीब हैं। जिनको अल्लाह ने सिर्फ बच्चियां दिया है वो भी बड़े खुशनसीब हैं। जिनको अल्लाह ने सिर्फ लड़के दिया है वो भी बड़े खुशनसीब हैं। जिनके घर में कुछ भी नहीं है वो बदनसीब नहीं है, वो भी खुशनसीब है। इसलिए कि हमारा ईमान है लड़का देना लड़की देना ये अल्लाह की जात से ताल्लुक है। अल्लाह दे दे तो अल्लाह का हक अदा करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर अल्लाह औलाद ना दे तो अल्लाह से मांगना चाहिए और सब्र करना चाहिए। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, कुरान का फैसला है, अल्लाह जिसको चाहता है लड़का देता है, जिसको चाहता है लड़की देते हैं, जिसको चाहता है दोनों देते हैं, और जिसको चाहता है दोनों से महरूम फरमा देते हैं। ये काम अल्लाह का है, इसलिए हमारा ईमान है दे दे तो शुक्र अदा करे, ना दे तो कोई गम नहीं, अल्लाह से मांगे और सब्र करें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में हमको अच्छा बदला देगा सब्र करने का। और जो इंसान सब्र करता है, कुरान में लिखा हुआ है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने के वाले के साथ है। मेरे दोस्तों, आज हम महल्ले के अंदर है और मिंबर से हमारा ताल्लुक हो जाए और कभी कॉलोनी के नाम से हमको कह दे कि आपको कॉलोनी मिलने वाला है, हमारी दोस्ती में इजाफा हो जाता है। मेंबर साहब कह दिया है मुझे कॉलोनी मिलेगा, खुश हो जाता है। हमारा ताल्लुक मुखिया से हो जाए, एमएलए से हो जाए, एमपी से हो जाए, प्रधान से हो जाए और किसी बड़े आदमी हो जाए, हम नाज करते हैं। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, ये ताल्लुक, ये दोस्ती बस दुनिया की दोस्ती है, दुनिया तक महदूद है। आपकी आंख बंद हो जाए, मेरी आंख बंद हो जाए, ये दोस्ती खत्म। मगर सबसे बड़ा जो ताल्लुक है, सबसे बड़ी जो दोस्ती है, सबसे बड़ी जो निस्बत है, वो किससे? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। वो हमारा नबी है, हम उनके उम्मती हैं। अल्लाह ने उस पर कुरान को नाज़िल किया, उनकी बरकत से कुरान हमको मिला है। और कुरान ये बता रहा है ये मौत, ये हयात, ये जिंदगी सब कुछ अल्लाह ने दिया है, हमें राजी रहना चाहिए, हम खुश रहना चाहिए। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, ये महीना रबीउल अव्वल का महीना है, हमारे नबी का पैदाइश का जमाना है।
हमें खुश होना चाहिए, हमको खुशी मनाना चाहिए, इसलिए कि आखिरी नबी है और ये आखिरी नबी तमाम फरिश्तों का इमाम, तमाम नबियों का भी इमाम है, और ये नबी तमाम नबियों का सरदार है। ये नबी पूरे कायनात का खुलासा है, और ये नबी जब दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, उन्हें नबूवत मिली और जिंदगी गुजारने के लिए उन्हें भी जरूरत पड़ी एक बीवी की, लिहाजा उसने भी शादी की। सबसे पहले जो उनकी शादी हुई वह है हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा है। और उनकी शादी, मिलाद का माना होता है कि नबी का जिक्र हो, और ये नबी का जिक्र हो रहा है। मेरे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक्त उम्र कितनी है? 25 साल, और जिस औरत से शादी हो रही है उसकी उम्र है 40 साल। और आगे सुन लीजिए, मेरे नबी कुंवारा है, यानी उनकी पहले एक भी शादी नहीं हुई है, और जिस औरत से शादी कर रहे हैं वो बेवा है, मुतल्लका है, यानी उनकी पहले शादी हो चुकी थी, वो बेवा हो चुकी थी या मुतल्लका हो चुकी थी। ऐसे औरत से मेरे नबी, आपके नबी शादी कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, उनकी शादी के बाद उनसे जो औलाद होती है, 4 बच्चियां हैं, 4 बेटियां हैं। आज जिसके घर में एक बेटी हो जाए, शौहर मुंह चढ़ाता है, उसका बेटा पैदा हो गया, बहुत खुश। ससुर वाले फोन करता है, मेहमान क्या पैदा हुआ, क्या हुआ? बेटी हुआ तो बोली नहीं निकलता है, मुंह अंधेरा कर लेता है, काला हो जाता है, बेटी हो गई, रोता है। बेटी को परवरिश करना पड़ेगा, शादी करानी होगी, 10 लाख की दहेज देना होगा, क्यों आ गई? और वो बदतमीज शौहर बीवी को कोसते हैं। अभी 40 दिन भी पूरा नहीं हुआ, बीवी बेचारी निफासत की हालत में है, नापाकी की हालत में है। उसके साथ प्यार करना चाहिए, वो कमजोरी की हालत में है, उसके खबर लेना चाहिए, उसके खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए। नहीं, मुंह चढ़ाता है ये बदतमीज शौहर। बच्ची हो गई है तो बताइए, अगर बच्ची हो गई है, मैं पहले ही कह दिया, बच्ची देना, बच्चा देना ये अल्लाह का फैसला है। गोया कि आप अल्लाह के फैसले से राजी नहीं हो रहे और आप बदनाम कर रहे अपनी बीवी को। अरे बदतमीज शौहर, ये आपकी बीवी का क्या कमाल है? आपका भी तो उसमें हिस्सा था। अगर आप चाहते, आपके चाहने से होता तो फिर लड़का क्यों नहीं पैदा हुआ, लड़की क्यों पैदा हो गई? कसूरवार अगर आपकी बीवी है तो उससे बड़ा मुजरिम तो आप हैं। आपने भी मेहनत किया था, आपने बीवी से सोहबत किया था, आपकी बीवी आपसे सोहबत किया, जिसके नतीजे में लड़की पैदा हो गया। जितना हकदार आप बीवी को बनाते हैं, उससे ज्यादा कई हकदार तो आप हैं मलामत का। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे जवानों, जब भी आपकी शादी हो जाए या जिनकी हो गई है, घर में बच्ची पैदा हो जाए, खुशी मनाइए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आपके नबी, मेरे नबी ने फरमाया, जब घर में बच्ची पैदा हो जाए खुशी मनाइए। और आप क्या कीजिए, उसका अच्छा सा एक नाम रखिए, प्यारा सा नाम रखिए, और वह बच्ची के 7 दिन उम्र हो जाए उसका अच्छा सा नाम रखिए और उसका अकीका कीजिए, यानी उसके बाल को छीलिए, उसके बाल को उतारिए, उस बाल को वजन कीजिए, उस बाल के वजन के बराबर चांदी खरीदिए और बाल को और चांदी को तोलिए, और जितने पैसे का हो जाए 100, 150, 200 रुपए का, उस चांदी को सदका कर दीजिए, किसी गरीब बच्चे को दे दीजिए। और दूसरी बात, बकरी ज़बह कीजिए, और ज़बह कीजिए, खुद भी खाइए, ससुराल वाले को खिलाइए और पास पड़ोस के लोगों को खिलाइए। अमीर गरीब सबको खिला सकते हैं, माँ बाप भी खा सकते हैं। हमारे यहाँ लोग क्या करेंगे, अकीका कर दिया, माँ बाप को नहीं खाना चाहिए। मौलाना कह रहा है खाना चाहिए, शरीयत कहती है खा सकती है। यह कुर्बानी के गोश्त की तरह है, जिस तरह कुर्बानी का गोश्त गरीब भी खा सकता है, अमीर भी खा सकता है, खुद भी खा सकता है, रिश्तेदार को खिला सकता है, इसी तरीके से अकीका का गोश्त सब कोई खा सकता है। यह सब इबादत है। बच्ची पैदा हो गई, आप उसका अच्छा सा नाम रखिए, उसके बाल को छीलिए, उस बाल के वजन के बराबर चांदी सदका कीजिए और उस बच्ची की अच्छी तरीके से परवरिश कीजिए। खुदा की कसम, आपके घर में एक बच्ची पैदा हो गई, जब दूसरी आ जाए, तीसरी आ जाए, चौथी आ जाए, तो सुन लीजिए, जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की 4 बच्चियां हैं। एक बच्ची का नाम फातिमा, आप तमाम हजरात जानते हैं, उन्हीं का बेटा हसन और हुसैन है, और फातिमा का शौहर का नाम हजरत अली हैदर कर्रार है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उनकी दूसरी बेटी का नाम रुकैया है, तीसरी बेटी का नाम उम्मे कुलसुम है, चौथी बेटी का नाम ज़ैनब है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस दुनिया का जो खुलासा है, जो इस दुनिया का प्यारा है,
اور दुलारा है, उसके घर में 4 बच्चियां हो रही है और वो खुशी मना रहे हैं और वो बशारत दे रहे हैं कि जिसके घर में 3 बच्चे हो जाए, 2 बच्चे हो जाए, 1 बच्चे हो जाए, परवरिश करके और उनको तालीम दे दे, तरबियत कर ले, वक्त पर उसकी शादी करा ले, उसके लिए जन्नत की बशारत है। ऐसे बाप को जन्नत मिलेगा मेरे दोस्तों। और आज हम लोग जन्नत लेना नहीं चाहते हैं, लेना तो चाहते हैं, हमें मालूम नहीं है कि बच्ची के परवरिश करके शादी कराने से हमें जन्नत मिलेगी। इसलिए मेरे दोस्तों बड़े खुशनसीब है वो घराना जिसने प्रोग्राम का इनेकाद किया है। आप जैसे बुजुर्गों को, आप जैसे जवानों को और मेरी माँ बहनें जो पर्दा में बैठी हुई है और इन बातों को सुन रही है, हमें जो अज्र मिलेगा, हम जो अमल करेंगे, सारा का सारा सवाब इस प्रोग्राम कराने वाले को मिलेगा मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। इसलिए जिस घर में भी बच्चियां पैदा हो जाए, कभी नागवारी मत कीजिए, खुशी मनाइए मेरे दोस्तों, खूब मिठाइयां तकसीम कीजिए। यह औलाद अल्लाह ने दिया है। जिस घर के अंदर बच्ची भी पैदा नहीं होती, बच्चा तो दूर की बात, ऐसे माँ से पूछिए, ऐसे बाप से पूछिए, वो बेचारे दर दर की ठोकर खा रहे हैं। और कभी मस्जिद के इमाम साहब के पास जाते हैं दुआ ताबीज के लिए, कभी अजमेर शरीफ जाते हैं, कभी और शरीफ जाते हैं कि एक बच्चा किसी तरीके से हो जाए। उस माँ से पूछिए कि एक बच्चा उसको मिल जाता है तो कितनी खुशी मनाता है। और आपको अल्लाह ताला बगैर मेहनत का, बगैर दुआ का, बगैर कोशिश का बच्चियां दे रहे, बच्चे दे रहे, तो आप खुश नहीं हो रहे। जिसके घर में औलाद नहीं, घर के उससे पूछिए, अगर उस घर में एक लंगड़ी बच्ची भी हो जाए, एक अंधी वाली बच्ची भी हो जाए और हाथ से लूली भी हो जाए, मगर बच्ची हो जाए, बच्चा हो जाए, वो माँ बाप कितना खुश होता है। इसलिए मेरे दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को पैदा किया है, हमें नबी का तरीका अपनाना चाहिए। हमारे नबी पर कुरान नाजिल हुआ है, उस कुरान को पढ़ना चाहिए, उस कुरान करीम के जो मसाइल है उस पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए पैदा हो जाए तो खुश होना चाहिए, हमारे घर में मौत हो जाए तो भी खुश होना चाहिए, इसलिए कि मौत हयात का मालिक सब अल्लाह है। मैंने पढ़ा था कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, दुनिया के अंदर जितने जानदार है, वो चाहे इंसान हो चाहे वो जानवर हो, वो इंसान चाहे मुसलमान हो चाहे काफिर हो, वो जानवर चाहे बकरी हो या गाय हो, हर एक जानदार को एक दिन मरना है, मरने का मजा चखना है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, जो लोग बिरयानी खाए हैं, कौरमा रोटी खाए हैं, नहारी खाए हैं, तहारी खाए हैं, उन तमाम हजरात को इन चीजों का मजा मालूम है। जो लोग नहीं खाए उसे क्या पता कि बिरयानी का मजा क्या है, तहारी का मजा क्या है। ठीक इसी तरीके से जिनकी वफात हो गई है, जो मर चुके हैं, उन्हें पता है कि मौत का मजा क्या है। हम लोग अभी मरे नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं कि मौत का मजा क्या होता है। इसलिए मेरे दोस्तों वो खुशनसीब है जो इस दुनिया में रहकर अल्लाह की इबादत करके रसूलुल्लाह के तरीका को अपना के अपनी जिंदगी को गुजार के चला गया और उनकी मौत चलने वाली मौत हो गई, आसानी वाली मौत हो गई, तो गोया के वो मौत का मजा चख लिया है। मेरे दोस्तों अब दोबारा वो इस मजा को नहीं चखेगा। इसलिए सबसे मसला हमारे लिए है, हम अभी जिंदा है, हमें मरना है मेरे दोस्त और बुजुर्गों। इसलिए अल्लाह से हर रोज दुआ करनी चाहिए, ऐ अल्लाह मौत की सख्ती से बचा दीजिए। मेरे दोस्त मौत की बड़ी सख्ती होती है। आपके नबी, मेरे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है, उनकी रूह निकलती है। ये नबी पूरे दुनिया का खुलासा है, अल्लाह का प्यारा है और मासूम है, बेगुनाह है। अल्लाहु अकबर। इनकी भी जब रूह निकलती है, जो तकलीफ होती है, मेरे नबी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हैं और पूछते हैं अल्लाह कि जो तकलीफ मुझे हो रही है, क्या मेरे उम्मती को भी ऐसी तकलीफ होगी? जबकि मेरे नबी को कोई खास तकलीफ नहीं दी जा रही थी। मेरे दोस्तों मेरे नबी ने उस वक्त कहा था अल्लाह अल्लाह, मेरे जितने उम्मती है, उम्मती के जो इंतकाल होगा, ये लोग जो मरेंगे, जितनी तकलीफ हो सकती है तमाम तकालीफ को जमा करके मुझे दे दी जाए, मेरे उम्मती को तकलीफ न हो। मेरे दोस्तों हमारे नबी हम उम्मतियों के लिए तो इतना रोना रोता है और ये दुआ कर रहे हैं, हम उसके उम्मती है और नबी का ख्याल नहीं करते। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, ये नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहा है, हमें बतलाया है, उनकी तालीमात में मौजूद है। हमें क्या करना चाहिए? नबी की सुन्नत को अपनाना चाहिए, नबी की सीरत को पढ़ना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हमें 5 वक्त नमाज भी पढ़नी चाहिए। हम मुसलमान हैं, जब हमारे 7 साल हो जाए बच्चा, तो अल्लाह के रसूल आपके नबी, हमारे नबी ने कहा उस बच्चे को नमाज का हुक्म करो
اور بچہ 10 سال کا ہو جائے تو ان کو کہو نماز پڑھو. اگر نماز نہیں پڑھتا ہمارا بچہ ہماری بچی تو آپ تنبیہ کیجئے. اگر ضرورت پڑ رہے ہلکی پھلکی مارنے کی تو ماریے اور کہیے کہ بیٹا نماز پڑھو, بیٹی نماز پڑھو. آج ملک کے حالات بہت خراب ہے, ہم لوگ پریشان ہیں کہ ہم لوگ کیسے زندگی گزارے. میرے دوست اور بزرگ, ہمارے ہندوستان میں ایک بہت بڑے عالم دین ہے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب, جن کا وطن خود بہار ہے اور وہ حیدرآباد میں اس وقت کام انجام دیتے دین کا کام کر رہے ہیں. ان سے ایک بڑے عالم دین ملاقات کر لیا اور کہا کہ حضرت اس وقت ملک کے حالات بہت خراب ہے, ہم لوگ کیسے زندگی گزارے, کیسے دوسرے کو اچھا پیغام دیں, آپ ذرا نصیحت کر دیجئے, ہمیں بتلا دیجئے. میرے دوست اور بزرگوں, حضرت 8 باتوں کی طرف نصیحت کیا. اس میں تو سب سے پہلی بات ہے اقیم الصلاۃ, کہ تم لوگ نماز قائم کرو. اپنے محلے میں جاؤ اور نوجوانوں سے کہو, نوجوان بچیوں سے کہو, یعنی عورت ہو یا مرد جو بالغ ہے, جن کی عمر 15 سال ہو گئی ہے, سب کو بولو کہ نماز پڑھے. میرے دوست اور بزرگوں, جب ہمارے ماحول کے اندر, ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے بستی والے سارے بالغ مرد ہو یا عورت سب اگر نماز پڑھنے لگے, خدا کی قسم یہ اللہ کو عذاب جو آ رہا ہے, عذاب جو آ رہا ہے کرونا کی شکل میں, یہ جو عذاب آ رہا ہے NRC کے شکل میں, MPR کے شکل میں اور کوئی دوسری شکل میں, انشاءاللہ نہیں آئے گا. آج ہم نماز سے دور ہیں, اللہ کا حکم کو ہم پورا نہیں کرتے ہیں, ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, صبح سے شام تک گناہ کرتے ہیں, اور ہم لوگ روزی کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں, اور روزی کا وعدہ نماز میں رکھا ہے. میرے دوست اور بزرگ, اگر ہم اور آپ نماز پڑھیں گے 5 وقت, اللہ کے رسول نے فرمایا جس طریقے سے ایک مزدور کسی کمپنی میں کام کرتا ہے اور کام دن بھر کرنے کے بعد جب اس کا بدن گندا ہو جاتا ہے, کپڑا میلا ہو جاتا ہے, اور وہ آدمی جب اس کمپنی سے اپنے گھر آتا ہے, اگر درمیان میں 5 نہر آ جائے اور 5 میں ڈبکی لگاتے ہوئے وہ گھر چلا جائے, تو کیا اس کے بدن میں کوئی میل اور کچیل باقی رہے گا؟ آپ بتائیے, رہے گا؟ نہیں رہے گا. میرے دوستو, میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی ایک مزدور آدمی کسی بھوسی میل میں کام کر رہا ہوتا ہے, اور جب وہاں سے وہ اپنے گھر واپس ہوتا ہے تو 5 نہر میں اترتا ہے اور تیرتے ہوئے, نہاتے ہوئے, ڈوبتے ہوئے نکل کے جاتا ہے, تو اس کے بدن میں کوئی میل باقی رہے گا؟ نہیں رہے گا. میرے نبی فرماتے ہیں جب انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے اور ظہر تک جو گناہ کرتا ہے یہ گناہ دھل جاتا ہے. اسی طرح ظہر کی نماز پڑھتا ہے پھر عصر تک جو گناہ کرتا ہے, اور یہ دونوں نماز کے درمیان کا گناہ دھل جاتا ہے. اسی طرح عصر سے مغرب, مغرب سے عشاء, عشاء سے فجر تک کی یہ مثال ہے کہ جو انسان 5 وقت نماز پڑھے گا, اس کے درمیان میں کوئی گناہ صغیرہ کر لے گا, چھوٹا چھوٹا گناہ کر لے گا, ان نماز کے برکت سے ان کے تمام بدن کے گناہ ایسے ہی دھل جاتے ہیں جس طرح ایک مزدور 5 نہر کو پار کر کے اپنا گھر جاتا ہے, اس کے بدن کے میل دھل جاتا ہے. سمجھ میں تو آ رہی ہوگی بات؟ بالکل واضح طور پر, اور نیچے اتر کے میں بات کر رہا ہوں چونکہ یہاں پر ہمارے مجلس میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں اور کچھ ان پڑھ بھی ہوں گے, اور ہمارے بچے بھی ہیں جو آج تک کبھی سنا نہیں ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے بھی سمجھ جائے, ہمارے جوان بھی سمجھ جائے, ہمارے نوجوان سمجھ جائے, ہمارے بزرگ سمجھ جائے, ہماری عورتیں بھی سمجھ جائے. اس لیے کھل کے میں بیان کر رہا ہوں. اس لیے میرے دوست کو نماز پڑھنا ہے. نماز پڑھیں گے تو اللہ کا وعدہ ہے روزی مقدر کرے گا. ہم لوگ صبح اٹھتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے ہیں اور کام کاج کے لیے نکل جاتے ہیں, پھر بھی روزی اللہ دیتا ہے. اللہ غفور رحیم ہے, اللہ رزاق ہے, اللہ بھوکا نہیں مارتا ہے. میرے دوست اور بزرگوں, اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کے مطابق اگر ہم زندگی نہیں گزاریں گے, یہ دنیا زیادہ دن تک باقی نہیں رہے گی, قیامت قائم ہو جائے گی. اگر ہم اللہ اللہ کرتے رہیں گے, دنیا زیادہ دن تک باقی رہے گی, ہم لوگ انشاءاللہ مزے اڑائیں گے. تو بھائی سب لوگ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. میرے دوست اور بزرگوں, جب ہم مر جائیں گے, مرنے کے بعد ہمارے دوست یار, ہمارے بھائی بہنوں, ہمارے باپ, ہمارے رشتہ دار, ہمارے استاد, ایسے حافظ مولوی جب ہم لوگوں کو جنازہ لے کے جائے گا اور قبرستان میں قبر میں اتار کر کے واپس آ جائے گا, صرف 40 قدم دور ہوتا ہے میرے دوستوں, فوراً فرشتہ آ جاتا ہے, حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے. سب سے پہلے جو آپ سے اور ہم سے سوال کریں گے وہ نماز کے بارے میں پوچھیں گے. اگر کسی نے نماز پڑھا ہے دنیا کے اندر, پابندی کیا ہے, تو وہ سوال کا جواب دے دے گا, اور اگر نماز نہیں پڑھا ہے تو سوال کا جواب نہیں دے پائے. بہت مشکل ہوگا میرے دوستوں. آج دنیا کے اندر ہمارا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے, کوچنگ کرتا ہے اور پورے سال پڑھتا ہے, اور ماں باپ بیٹھاتا ہے پڑھانے کے لیے.
एक दिन 1 घंटा या 4 घंटे का इम्तिहान होता, पूरे साल के बारे में पूछा जाता है। जो मेहनत करता है, सवाल का जवाब दे देता है, वो बच्चा पास हो जाता है, और जो नहीं पढ़ता है वो फेल हो जाता है। मेरे दोस्तों, ये पूरी जिंदगी का मसला होगा। कब्र के अंदर जाने के बाद अल्लाह के फरिश्ते आएंगे और 3 सवाल करेंगे। मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा खुदा कौन है, तुम्हारा परवरदिगार है, तुम्हें किसने पैदा किया, तुमको कौन मौत दिया। यानी इसके अंदर छुपी हुई बात है। पूछेगा तुम्हारा खुदा कौन है। मेरे दोस्तों, जब हम दुनिया में रह करके अल्लाह के काम करेंगे, रसूलुल्लाह के काम करेंगे, रसूलुल्लाह की सीरत को पढ़ेंगे, उनके मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, तो यह सवाल का जवाब देना आसान होगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद पूछेगा माँ दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है। अगर हम दुनिया के अंदर अच्छा काम किए हैं तो वहां बता देंगे हमारा दीन इस्लाम है, हम मुसलमान हैं, हमारा मजहब इस्लाम है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे दुनिया के अंदर, इस सवाल का जवाब वहां नहीं दे पाएंगे। और फिर कब्र के अंदर से एक शख्स को खड़ा करके पूछेगा ये शख्स कौन है। महादर रजुल पूछेगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वो हमारे और आपके नबी होंगे। अगर आप नबी वाला काम किए हैं, आप अगर नबी के दीवाने हैं, आप और हम आशिक रसूल हैं, हमारी जिंदगी नबी के जिंदगी से मिलती जुलती है, हमने ऐसी जिंदगी गुजारी है, तो हम बता देंगे हमारा नबी है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, इस चीज के लिए पूरी जिंदगी हमको मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके 3 सवाल का हम हल कर सकते हैं। दुनिया के अंदर इम्तिहान होता है, सवाल को दिखाया नहीं जाता, सवाल को बताया नहीं जाता। जब पर्चा हाथ में आता है तब हमारा स्टूडेंट को पता चलता है ये 5 सवाल आया है और 3 सवाल करना पड़ेगा। अगर याद किया है तो लिख के आता है, नहीं तो सोच के आता है और परेशान हो जाता है, फेल हो जाता है। दुनिया के अंदर फेल हो जाए, दोबारा मौका मिलता है कि दोबारा उस साल को इजादा कर दो, उस साल को लौटा दो, दोबारा कोचिंग कर लो, दोबारा इस साल को लौटा दो, फिर दोबारा मेहनत कर दो और पास हो जाओगे। मगर वहां दोबारा मेरे दोस्तों, कब्र से आज तक कोई ताजिया बस्ती हो, ये लाइन बस्ती हो, हमारे किशनगंज में हो, गांव देहात में हो, आज तक आपने सुना होगा कोई मर गया और दोबारा वापस आया है? नहीं आया मेरे दोस्तों। एक बार जब चले जाएंगे कब्र के अंदर, दोबारा आना नहीं होगा। इसलिए दुनिया के सवाल तो बताया नहीं जाता, मगर आखिरत के सवाल को बता दिया गया है कि कब्र के अंदर जाते ही 3 सवाल होगा कि तुम्हारा खुदा कौन है, हमारे लफ्जों में कहिए तुम्हारा दीन क्या है, और तुम्हारा नबी कौन है, यह पूछेगा। जब हम दुनिया के अंदर कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो सवाल का जवाब दे देंगे, और जब जवाब दे दिए तो मजा आ जाएगा। जन्नत की खिड़कियों को खोल दी जाएगी, जन्नत की कालीन बिछा दी जाएगी, और जन्नत से खुराक आएगा पार्सल, और हम लोग वहां बैठ के खाते रहेंगे और आराम से कब्र के अंदर सो जाएंगे। और जब कयामत होगी, फरिश्ता आके हमें उठाएगा, तो हम उस वक्त कहेंगे हमें सोने दीजिए ना, अभी तक क्यों उठा रहे हैं। मेरे दोस्तों, हालांकि एक जमाना बहुत लंबा जमाना होगा। आप बताइए, आपके बाप इंतकाल होने का 40 साल हो गया, आपका दादा का मरने का 80 साल हो गया, उनके दादा का मरने का 200 साल हो गया, आदम अलैहिस्सलाम का मेरे तो इतने 100 साल हो गए, जबकि हमारा नबी आखिरी नबी है, इनके मरने का 1400 साल हो गया। उसके बाद भी कुछ साल गुजर गए और उसके बाद हम लोग अभी हैं। इतनी लंबी मुद्दत, अगर कोई आदमी पहले नेक था और मर गया, उस वक्त से आज तक कब्र के अंदर आराम कर रहा है, उन्हें जब कयामत के दिन उठाया जाएगा, वो सोचेगा मैं तो अभी सोया था, मुझे क्यों जगा रही है। वो चाहेगा कि मुझे सोने दो। मगर जो अजाब में मुब्तला है, जिसे तकलीफ हो रही है, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उसकी एक झलकियां सुन लीजिए। कब्र में उतारने के बाद जब ये सवाल और जवाब होगा, जब वो फेल हो जाएगा, फौरन सुन लीजिए अल्लाहु अकबर। उनके कब्र की जो 4 दीवार होती है, जैसे हम यहाँ बैठे हुए, एक दीवार इधर, एक दीवार इधर, एक दीवार इधर, एक दीवार पीछे, गोया कि कब्र ऐसे होती है, चारों तरफ से दीवार है, और फौरन अल्लाह के हुक्म से वो चारों दीवार करीब आती है और आकर के यूं घुस जाती है, दबा लेती है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उस मैयत के हैसियत क्या होती है उस वक्त, हदीस में आता है, इधर की पसली, इधर की हड्डी इधर घुस जाती है, इधर की इधर हो जाती है, इधर की इधर, उधर की उधर। क्या आलम होगा मेरे दोस्तों। और ये जो कब्र दबाएगी, या मोमिन हो या काफिर या गुनहगार हो, हर एक को दबाई, मगर जो नेक होगा उसको असर नहीं होगा, पता नहीं चलेगा। उसको ऐसा लगेगा जैसे दुनिया के अंदर हमारा और आपका सर में कभी दर्द होता है। मैंने पहले ही कह दिया, शौहर दिन के लिए काम में जाते हैं, शाम को वापस आता है, गर्मी के वजह से, सर्दी के वजह से, टेंशन की वजह से सर में दर्द हो जाता है। आते ही हमारी बीवी तेल लगाती है, मालिश करती है, हमें आराम मिल जाता है।
میرے دوستوں اور بزرگوں، ٹھیک اسی طریقے سے اس شخص کو محسوس ہوگا کہ ہماری ماں سر دبا رہی ہے، ان کو آرام ملے گا، اور جو گنہگار ہوگا، بدنصیب ہوگا، کافر ہوگا، جب قبر دبائے گی اس کی مثال یوں دیا جاتا ہے، اگر ایک انڈے کے اوپر 8 کنٹل کا پتھر ڈال دیا جائے، اس انڈے کی جو حالت ہوگی اس شخص کی یہی حالت ہوگی۔ اللہ کی حفاظت، اللہ کی پناہ، اللہ ہمیں بچا کے رکھے، آمین کہیے میرے دوستوں۔ میرے دوست اور بزرگوں، ایک بات، دوسری بات میں نے کہا نماز پڑھیں گے اللہ راضی ہوگا، دنیا کے اندر رزق ملے گا اور آخرت میں جنت ملے گی، اللہ خوش ہو جائے۔ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو سن لیجئے قبر کے اندر کیا عذاب ہوتا ہے۔ ایک سانپ کو اللہ مسلط کرتا ہے، وہ سانپ آئے گا، اس سانپ کا دونوں طرف سے منہ ہوگا، پورے بدن کو لپٹ جائے گا اور دونوں منہ کھول کے رہے گا اور پوچھے گا جناب تم نے فجر کی نماز پڑھی تھی؟ آدمی جھوٹ بولنا بھی چاہے گا تو بول نہیں پائے گا، اس لیے کہ تالا لگا دیا جائے گا، وہ آدمی بول ہی نہیں سکتا، تو پھر فوراً ڈنک مارے گا۔ اس ڈنک کا اثر یہ ہوگا کہ 40 ہاتھ یا 70 ہاتھ وہ میت زمین کے اندر دھس جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس میت کو اپنے لوہے کے ناخن کے ذریعے سے اس کو نکالے گا وہ سانپ، اور اس کے بعد پھر ڈنگ مارے گا، ایک بار ڈنگ مارے گا، اس کا جو زہر ہوگا، اس کا جو جلن ہوگا، اس کی جو تڑپ ہوگی، اس کی جو پریشانی ہوگی، حدیث میں آتا ہے اگر اس سانپ کے فنکار کو کسی جنگل میں یا دنیا کے اندر اس کا سانس کو چھوڑ دیا جائے تو کہیں گھاس نہیں اگے گا، اتنی تکلیف ہوگی میرے دوستوں۔ وہ سانپ جب ڈسے گا کتنی پریشانی ہوگی، ایک بار ڈسے گا پھر کہے گا، پھر ظہر کے بارے پوچھے گا، عصر کے بارے پوچھے گا، مغرب کے بارے پوچھے گا، عشاء کے بارے پوچھے گا، فجر کے بارے پوچھے گا۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اسی طریقے سے جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک قبر کے اندر ڈستا رہے گا۔ اللہ ہم سب کی اس سانپ سے حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے جوانوں، جو غلطی ہوئی اب دوبارہ غلطی نہیں کریں گے، ہم توبہ کریں آج ہی سے، ابھی سے انشاءاللہ ہم لوگ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جو لوگ نماز پڑھتے بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو صحیح طور پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ قبر کی جھلکیاں ہیں، اب جب قبر کے اندر ڈال کے آپ اور ہم آ جائیں گے میرے دوستوں، اور اسی طریقے سے حساب کتاب ہوتا رہے گا، اور جب میدان محشر قائم ہوگا پھر اللہ تبارک و تعالی پورے لوگوں کو اٹھائے گا، آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور قیامت تک جتنے لوگ مریں گے سب کو کھڑا کر دیں گے اور حساب کتاب ہوگا۔ جو آدمی بھی ایک نیکی کیا ہوگا وہ بھی لکھا ہوا ہے، جو گناہ کیا ہوگا وہ بھی لکھا ہوا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی جب فیصلہ کر دیں گے یہ گنہگار ہے اور یہ نیکی والا ہے، ان کو ایک لیٹر ملے گا، ایک خط ملے گا، ایک پروانہ ملے گا، اور اس کو جب دیا جائے گا تو دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جس کا خط، جس کا لیٹر اور وہ کتاب جس کو دائیں ہاتھ میں مل جائے گا وہ جنتی ہوگا میرے دوستوں۔ اللہ سے دعا کرے، اے اللہ جب میدان محشر قائم ہوگا، حساب کتاب ہوگا اور وہ کتاب ملے گی ہم لوگوں کو تو دائیں ہاتھ میں عطا فرما۔ دائیں ہاتھ میں ملنے کا مطلب ہوگا کہ جنتی ہوگا، اور جس کو بائیں ہاتھ سے ملے گا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔